Hello friends, welcome to my YouTube channels, Mathematics at a Glance. Today I have brought in my video, that is trigonometry. This is the next chapter of class 11 mathematics. Today we are going to discuss detail about the trigonometry, under which today we shall discuss that measurement of an angle. एंगल को किस प्रकार से मेजर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दैट इज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मेजरिंग ऑफ द एंगल। एंगल क्या होता है, पहले हम लोग डिसाइड करेंगे एंगल क्या होता है। जैसे एन एंगल, if O is a point and OA is initial site and it terminates in the direction anti-clockwise in the direction OB, here OA is called initial site और OB को क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइट। टर्मिनल साइट। Then the angle between AOB, the space between the space which is formed by initial side to the terminal side is called an angle, and which is measured at theta. Positive and negative angle. Positive and negative angle. Positive angle, if initial side terminates in clockwise, so in anti-clockwise, then positive angle form. Positive angle form. However, if terminates clockwise, then negative angle form. नेगेटिव एंगल फॉर्म। नेगेटिव एंगल क्या है, ये पॉजिटिव एंगल हो गया, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल के लिए जैसे ओ ए इनिशियल साइड है और ओ बी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। यानी ये एंगल जो है थीटा, ये माइनस थीटा के रूप में लिया जाएगा। ये निगेटिव एंगल होगा, निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल किसी भी एंगल को हम दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं। पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, SEXADESIMAL, hexadecimal system, which is also known as degree measure. Degree measure. We know that at a point, see, an angle which is 1/368 part of a revolution or rotation of a point
is considered 1 degree. 1 degree. 90 degree angle is called right angle. अगर 180 डिग्री है तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल. 360 then it is complete angle. वन डिग्री में there are 60 minutes. 60 minutes. 1 minute equal to 60 seconds. 60 seconds. डिग्री मेजर के अलावा एक और सिस्टम है जिसमें हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, और वो है रेडियन मीटर. रेडियन मीटर, जैसे इसको सर्कुलर सिस्टम बोला जाता है. सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मीटर. रेडियन मीटर, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मीटर. चलिए कंसिडर करते हैं एक सर्कल जिसका सेंटर है O, रेडियस आपका हो गया R, और AB के बीच में AB जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये भी हम कंसिडर करेंगे R. In this case, if an angle which is formed is called 1 radian. 1 radian. अगर if the length of arc is same as radii of the circle, then angle formed by arc at the center is called 1 radian. 1 radian. It is 1 radian. 2 pi radian equal to 360 degree, और pi radian equal to 180 degree, और 1 radian equal to 180 pi, 180 by pi. ऐसे ही 1 डिग्री, अब कैसे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर कोई भी एंगल डिग्री में दिया हुआ है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्जन ऑफ एन एंगल इनटू रेडियन. वन रेडियन और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, एंड 1 radian equal to 180 by pi degree. To change degree into radian, multiply by pi by 180. ऐसे ही to change radian
into degree multiply by 180 by pi. 180 by pi. एक और टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन an arc, radius and angle. जैसे एक सर्कल है, इसमें O is the center, OA and OB are two radii. Theta is the angle which is formed by the length R. AB. R is the radius of the circle. Then, if an arc L of a circle with radius R sustain an angle theta at the center, then theta equal to L by R. Theta equal to L by R, यानी ये थीटा जो है इन दोनों का रेशियो होगा, और वी कैन से L इक्वल टू R इंटू थीटा. L इक्वल टू R इंटू थीटा. चलिए इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. जैसे एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 270 डिग्री into radian. तो हमें मालूम है कि 1 डिग्री इक्वल टू 1 पाई बाई 180 रेडियन. 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन. तो 270 डिग्री क्या होगा? 270 इंटू पाई बाई 180 रेडियन. ये कैंसिल कर लेंगे, 9 3 जा 9 2 जा, तो आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन. ऐसे ही अगर ये कहा जाए कि कन्वर्ट 3 पाई बाई 4 रेडियन इंटू डिग्री, कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री. तो 3 पाई बाई 4 क्या होगा? इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, और ये डिग्री में आ जाएगा. पाई और पाई कैंसिल कर लेंगे. 4 इंटू 45 और 45 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 135 डिग्री. तो ऐसे किसी भी एंगल को उसका फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं. अगर रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में, और डिग्री में अगर दिया हुआ है तो रेडियन में चेंज किया जा सकता है. एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दो सर्कल है, दो सर्कल if 2 arcs with same length sustain
an angle 60 degree and 75 degree on their respective centers, then find the ratio between their radii. जैसे अगर दो सर्कल है, एक पर दोनों का लेंथ सेम है, दैट इज L1 एंड L2, O A B O डैश X Y, यहाँ पर θ1 और इसको θ2 कंसिडर करें, रेडियस R1, रेडियस R2. We have θ1 equal to 60 degree and θ2 equal to 75 degree. दोनों की वैल्यू दी हुई है, and we have to find R1 by R2. So we know that we have L1 equal to L2 given, but L1 is replaced by R1 into θ1, and similarly this will be R2 into θ2. Why? Since L equal to R theta. अगर हम R1 और R2 की वैल्यू लें, इसको यहाँ से इंटरचेंज कर दें इस साइड में और इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर दें, तो हो जाएगा θ2 by θ1, which can be written as R1 by R2 equal to 75 by 60, which is divisible by 15, can be written as 15 5 and 15 4. So R1 is to R2 equal to 5 is to 4, or 5 is to, which is required ratio. तो आज इतना ही. अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर फंक्शन के रूप में लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट.